But before I start, let me ask you a simple question. Is my voice audible? I request all the participants, अगर आपको मेरी voice सुनाई दे रही है तो can you put a yes on the chat? Thanks श्रीवास्तव जी, thanks a lot. आप लोग अगर yes लिखते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, to be very honest with you. Good, good, good. Thank you very much. Because my topic is all about managing challenges. तो पिछले एक साल से एज ए टीचर आपने जो चैलेंज अनुभव किया होगा और मैं जो अनुभव करता हूँ, I will certainly share with you. Right, good, good, beautiful, beautiful. अच्छा, next question before I actually take off with my session. Just give me a feedback through the chat. Should I speak in English? Should I speak in Hindi? Or do you like a खिचड़ी of English or Hindi? कितनों को खिचड़ी अच्छा लगता है वो खिचड़ी लिखें, कितनों को इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश लिखें, हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी लिखें. Can you just, oh, many of you like खिचड़ी, because there could be some of my friends who are a mix of language. Dr. Nirbhay ji, Dr. Binod Soni ji, good, 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 good. Khichdi, khichdi. There are some people, maybe South Indians, who says English is good enough. I agree. We'll do one thing. We will move like this. Okay. Thank you very much for your feedback. You know, I'm very happy to see this yes and your khichdi, because for the last 1 year, you know, as a teacher, I feel कि मेरे लिए सबसे बड़ा challenge, you know, when the small beautiful coronavirus came last May, and I remember the first FDP I was invited by NIT Surat, where that's 1 year before. That was inaugurated by the honorable, you know, chairman of AICT, Professor Sahastra Buddhe. और वहाँ से हम लोग ये learning teaching methodology, FD, you know, flipped learning, you know, blended learning, इस पर discuss कर रहे थे. At that time when I was taking this 5-day session, you know, program FDP, you know, my dear friends, सबसे बड़ा challenge as a faculty स्वामीनाथन को जो हो रहा था ना, मेरे लिए दो सबसे बड़ा challenge था. The first challenge is how to teach, and number 2 is what to teach. And let me be very honest with you, my dear friends. एक साल पहले मैंने Zoom कभी सुना ही नहीं था. मेरे लिए Zoom was all about, you know, कैमरा में जो Zoom होता है. और ये Zoom मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके yes yes मुझे मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके दर्शन भी हो जाते हैं. तो my session will be there till 11:30. Right, 11:30 को अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, that's your choice, क्योंकि आप घर में बैठे हो, you could be very, you know, comfortable, right? लेकिन अगर वीडियो ऑन कर अगर मुझे आपके दर्शन हो जाए ना, I'll be very very happy, क्योंकि कभी-कभी मुझे ऐसे FDP में लेकर जाया जाता है जहां मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है. You know, I don't want to mention those domains. मैं बस बैठा हूं और मुझे लगता है मैं दीवार से बात कर रहा हूं. Just imagine the challenge that we teachers have, you know. तो मुझे कभी-कभी लगता है ये कोरोना वायरस जो है, वॉरियर्स जो हैं, सिर्फ डॉक्टर्स और पुलिस पीपल या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. वी टीचर्स कैन ऑल्सो टेक आवरसेल्व्स टू बी कोरोना वॉरियर्स, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, बीच बीच में आप यस लिखेंगे, बीच बीच में अगर आप वीडियो ऑन करेंगे ना, आपके दर्शन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोई एडवाइस मोड पे जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आज आपको ना एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल एनिमेटेड मूवी. तो अगर आपके घर पर लॉकडाउन है, चुटके चुटके बच्चे जो घूम रहे हैं ना, और वाइफ को बुला लो और ये एनिमेटेड वीडियो देखो. आई विल शो यू दिस वीडियो. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो. मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा. अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो आपके घर का जो छोटू है ना, ही मे बी एबल टू गिव सच ब्यूटीफुल क्रिएटिव आंसर्स. ओके, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर facing the same challenge. The teachers, the students, the children, and certainly the mama also. So I'll show this video to you. What's this video? It's a small, beautiful animated movie, and this particular movie got an International Film Festival award also, right? So I'll take you there. Yes. चौहान सर, मुझे आपको इसका ऑडियो सुनाई दे रहा है, तो अगर आप हाथ उठाएंगे क्या? यस, आई एबल टू? यस, ओके 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 ओके, क्योंकि मुझे, बिकॉज मुझे सिर्फ चौहान सर दिखाई दे रहे हैं अपने. ओके, गुड गुड. तो वॉच दिस वीडियो. इट्स कॉल्ड एज अ फ्रीडम सॉन्ग.
ओके अच्छा कितनों को यस यस ओके आई एम श्योर ऑल ऑफ यू लाइक दिस ब्यूटीफुल कार्टून मूवी आई मे सीम वेरी चाइल्डिश बट क्योंकि आप घर में हो ना तो बच्चों के साथ बैठकर ये देख सकते हो anyway it's a beautiful movie with a very powerful script and it actually reflects the situation we are in right now इसमें एक छोटा सा पंछी जो था बहुत अच्छा गीत गाता था जंगल में one day the king was going through and he heard the beautiful melodious voice of that पंछी उन्होंने अपने राज्य महल में ले आया पकड़ के फिर देखा कि वो पंछी गीत नहीं गाती है राजा ने बहुत ट्राई किया then one day राजा thought that let me give freedom to this bird राजा understood the emotions of that bird the bird got the freedom when the next day the bird came and sang that wonderful beautiful song the king happy the bird also happy now I remember many years before when I was a full-time faculty of engineering in Mumbai University उस समय हमें मालूम ही नहीं था कि बहुत वर्षों के बाद ये वो कोरोना वायरस दोस्त बन के हमारे पास आएगा तो मुझे याद आता है दोस्तों कि मैंने ना वो ये जो मूवी है ना अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दिखाया और मैंने उनसे 3 प्रश्न पूछा The first question I asked my engineering students is, who is the bird, which is the cage, and who is the king? पंछी कौन है, पिंजरा क्या है, राजा कौन है? एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया मैंने कहा अच्छा बताइए पंछी कौन है, पिंजरा क्या है, राजा कौन है? उसने कहा सर वी स्टूडेंट्स आर द पंछियां सर. वाओ वेरी गुड. विच इज द केज? बोला सर दिस क्लासरूम एंड दिस कॉलेज and this university is the pinjara sir, is the cage sir. मैंने कहा अच्छा बच्चे बताओ राजा कौन है? बोला सर आप राजा हो सर जो सामने खड़े हो. मैंने कहा I don't want to become such a राजा. Today I'll give you total freedom my dear पंछी रूपी स्टूडेंट्स. अब दरवाजे से खिड़की से जहां से उड़ना चाहो उड़ जाओ. I am going to give you 100% attendance, but I want to enjoy the freedom. I was showing this video to my MBA students, right? मैंने उनको वही वीडियो दिखाया बड़े प्यार से पूछा अच्छा बच्चे बताओ पंछी कौन है, पिंजरा क्या है, राजा कौन है? एमबीए के बच्चे थे. वन स्टूडेंट गॉट अप एंड सेड सर द बिजनेस ऑफ टुडे इज द पंछी सर. अच्छा वेरी गुड, गुड इंटरप्रिटेशन. पिंजरा क्या है भाई? बोला सर जीएसटी इज द पिंजरा सर. अच्छा फिर राजा कौन है? बोला सर देश के राजा कौन है ये तो आप जानते हो ना. मैं कहा यस यस आई एम अवेयर. It's a way how you interpret it, correct? हम लोग इसको बहुत तरीके से you can do this interpretation, but I'll do one thing. I will give you the first one because we have a limitation of time and we have to complete it on time. मैं काम करता हूं पंछी क्या है मैं आपको बोलता हूं. Just let me know which is the cage and who is the king. Are you all listening my dear friends? Yes लिखिएगा. आप सुन रहे हो ना मुझे? Yes yes. अरे बाबा थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वंडरफुल, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू श्रीवास्तव जी. गुड गुड गुड. क्योंकि ना ये ऑनलाइन में यही होता है ना, बच्चे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है. और तो ऑफलाइन में भी ऐसे होता था. एक बार हमारी तरफ प्रोफेसर क्लासरूम में गए एंड ही वाज डूइंग हिज सत्संग ऑफ इंजीनियरिंग. सत्संग कर रहे थे, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, बच्चों को इंजीनियर्स बना रहे थे. तो उसने देखा अचानक लास्ट में एक स्टूडेंट आराम से अपना सर जो है ना अपने हाथ में रखकर टेबल में आराम से खराटे मार के सो रहा है. द प्रोफेसर गॉट डैम एंग्री. तो उसने वो बाजू वाले जो क्लासमेट बैठा था ना स्टूडेंट उसको बोला हेलो कांट यू सी योर फ्रेंड स्लीपिंग, प्लीज वेक हिम अप. या तुम देखता नहीं है तुम्हारा बाजू वाला स्टूडेंट खराटे मार के सो रहा है, उसको उठाओ ना. बाजू वाला विद्यार्थी पता है क्या बोलता है? वो खड़े होकर कहता है सर यू हैव पुट हिम इनटू स्लीप, बेटर यू वेक हिम अप. सर आपने सुलाया सर, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको उठाओ. तो ना अभी भाई ऑफलाइन में तो देखते हैं कौन खर्राटे मार के सो रहा है, अब ये ऑनलाइन में कैसे देखे? सारे की वीडियो भी बंद है. बस दिस इज द ओनली वे आई कैन एंश्योर कि भाई आप लोग जागृत रहो. जैसे अटेंडेंस तो मिल ही जाता है, सर्टिफिकेट भी एआईसीटी आपको दे ही देगा, लेकिन अगर आप बीच बीच में यस यस लिखते हो ना स्वामी सर की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है. ओके व्हाट आई एम गोइंग टू डू माय डियर फ्रेंड्स इज, पंछी क्या है मैं आपको बताता हूं. आई वांट यू टू एक्सट्रापोलेट which is the cage and who is the king. My dear friends, जो पंछी जो होता है ना जो हमेशा उड़ना चाहता है, चाहे हम जैसे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, something that always wants to fly. And you know which is the bird? The bird means our dreams, सपने. The birds are our dreams. सपने सजाओ,
सपने को श्रृंगार करो. Question number 2, then what is the thing that is stopping us to dream? Don't write corona virus है. कोरोना वायरस आपके ड्रीम वीम का कोई नहीं. हाँ वो डराता होगा जरूर, लेकिन बोलना नहीं. कुछ लोग, मैंने उस दिन में आई वाज डूइंग एन ऑनलाइन प्रोग्राम, कुछ स्टूडेंट्स का, मैंने कहा भाई विच इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग सर? कोरोना. मेरी जी यू आर वेरी बुद्धिशाली, एब्सोल्युटली राइट. नेहा जी यू आर वेरी वेरी करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट. यस, what is the thing that is stopping us to dream? It is our fear, it is our anxiety, and most important, she has really summarized Mary George, and she says it is our mindset. I understand she is a clinical psychologist, so every day she reads the mind of the people and she understands as a clinical psychologist कि कैसे लोग अपने belief system के अंदर जकड़े हुए हैं, right? अच्छा, okay मेरी जी, tell me, right? आपसे मैं पूछता हूँ, if you can unmute and if you can give me an answer, okay? अगर सपने हमारे पंछी हैं, mindset वो केज है, तो मेरी जॉर्ज, आई कैन सी यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर दर्शन. राजा कौन है भाई? राजा कौन है? मेरी जी अनम्यूट करके बताइए, राजा कौन है? नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू अनम्यूट. मेरी जी, आई एम नॉट एबल टू हियर योर मेलोडियस वॉइस. आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को. हाँ, राजा कौन है मेरी जी? इट्स मी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हाँ, आप हो. नहीं नहीं नहीं, आप राजा कैसे बने? आप तो रानी हो ना. यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेरी जी, यू आर राइट. राजा जो है ना, हम हैं. See, you know, sir, everything begins and ends with us only. If we have the right attitude and you know, mindset, nothing in this world can stop us. Absolutely right, absolutely right. Wonderful, wonderful. So this is and that's topic. The biggest challenge. That's the biggest challenge. Yeah, I agree with you. I agree with you. Absolutely right. मेरे अलावा बाकी सब ठीक है. I mean, बाकी कोई ठीक नहीं है. I mean, I'm the right. The rest, everyone is wrong. और जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे ना, yeah, and what you said is very correct. That's our belief system, mind system. और जिस दिन इस बात को हमने समझ लिया, life will actually become very simple and easy. Okay, so the most important, जो पंछी जो है ना, वो हमारे dreams है, and mindset is our cage, and the third one is the king is the self. And these are the three things that we are going to touch today. And most important, here I bring a very wonderful person, you know, and it's none other than late Dr. Kalam sir. डॉक्टर कलाम सर जब भी वो बच्चों से इंटरेक्ट करते थे ना, ये डायलॉग बोलते थे, वी शुड टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम. कभी भी बच्चों को डराओ नहीं, बट उनको अलाउ करो, लेट देम ड्रीम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो. एंड आई कोट डॉक्टर कलाम व्हेन ही यूज्ड टू से, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम. एंड ही यूज्ड टू से, ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग व्हिच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप. सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं देवे. आई रिमेंबर लास्ट समर वेकेशन, आई वाज डूइंग एन ऑनलाइन समर कैंप बच्चों का. आजकल भी मैं 20-20 में करता रहता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, एंड देयर वर मोर देन 500 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. यू नो, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर एबल टू कनेक्ट टू पीपल अक्रॉस द ग्लोब, राइट? देयर वर पीपल फ्रॉम, देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट कंट्रीज. तो मैंने उनको एक छोटा सा होमवर्क दिया. मैं कहा, डॉक्टर कलाम सर कहते हैं कि अच्छे सपने सजाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए उसको, है ना. यू हैव टू मेक योर सपना वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, राइट? तो आप लोग सब लोग ना एक अच्छा सपना सजाकर, है ना, इस ईमेल आईडी में या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजो. आई गॉट सच वंडरफुल ब्यूटीफुल आंसर्स. वन ऑफ द स्टूडेंट, शी शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम विच आई वुड लव टू शो इट टू यू माय डियर फ्रेंड्स. और मुझे बहुत अच्छा लगा, करेक्ट. पता है, शी वाज अ 7th स्टैंडर्ड गर्ल. उसने एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम बनाया, एक बहुत सुंदर दुनिया. And I'm telling you this COVID time के हिसाब से. And she wrote a very beautiful, thanks to her parents maybe, or thanks to her teachers, she coined this statement. We dream of a world that is full of joy, peace, bliss, health, wealth, happiness, certainly nature full of tranquility. तो दूसरा दिन जब मैं ऑनलाइन में आया, तो मैंने उस बच्ची से पूछा, इतना सुंदर दुनिया है भाई, इसका कुछ नाम रखा क्या? तो she suddenly got, तो उसने शायद अपनी मम्मी को बुलाया, किसी को बुलाया, बिकॉज घर से चल रहा था. And she gave such beautiful answer. बोला, सर उसको जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, सर इसको कृष्णपुरी कहते हैं, वैकुंठम कहते हैं, बहिष्ठ कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, सर सतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं. और फिर शी सेड, सर जिस भी नाम से पुकारना चाहे आप पुकार सकते हैं. दैट शुड बी द ड्रीम, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम वी हैव गॉट टू, यू नो, कम्युनिकेट दिस, राइट? नाउ लेट अस कम टू आवर माइंडसेट. पिछले 1 साल में हमारे जो माइंड जो सेटिंग हुई ना,
3 मोस्ट कॉमन इमोशंस। मुझे ये स्लाइड लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन मुझे लगा सिंस वी आर ऑल मोर लेस टेक्निकल टीचर्स, इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स, until unless we don't define the problem, शायद हम लोग solution पर नहीं जाएंगे. So for the last 1 year, what was the challenges that you and me are facing? There's a lot of fear and worry. Number 1, there's a lot of anger and anxiety. And number 3 is बहुत असुरक्षा की भावना आ रही है, insecurity. Now they say life is a question of options. Life is a question of choice. I'll give you 2 options. And I know since all of you are teachers and professors, you are really buddhishali, you will choose the right option. मैं 2 ऑप्शन बताता हूं, आप लोग सही ऑप्शन चूज करके चैट में जरूर लिखना, राइट? और जब चैट में लिखते हैं तो आई फील वेरी गुड अबाउट इट. फर्स्ट ऑप्शन इज देयर आर सो मेनी चैलेंजेस आउटसाइड, मे बी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, माय प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज ये सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाए, देन आई ब्रिंग माय माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, राइट? दैट्स अ फर्स्ट ऑप्शन. Option number 2 is, if I bring my mind to a state of peace and stability, then I get the inner strength to manage all the external challenges. Which is the right option? First or second? My God, Chauhan sir, exactly right answer. Your students are very, very saubhagyashali to have such a buddhishali principal like you, sir. And remember, all these participants, थोड़ा attendance ऊपर नीचे हो भी जाता है ना सर, इनको certificate जरूर दे देना सर. सारे लोग बुद्धिशाली हैं सर, सब लोग सही जवाब लिख रहे हैं सर. वेरी गुड, आई सल्यूट यू. नाउ ये जो आपने ऑप्शन चूज किया ना, इट्स एन हाइपोथेसिस. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 24 आवर्स इस हाइपोथेसिस को आप और हम, आई विल आल्सो जॉइन यू, एक्सप्लोर दिस हाइपोथेसिस. हिंदी में कहते हैं खोज करो, एक्सपेरिमेंट दिस हाइपोथेसिस, प्रयोग करिएगा, एंड एक्सपीरियंस दिस हाइपोथेसिस, अनुभव करिएगा. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 25 years. And that is my, one of the hypothesis for my PhD topic also. कैसे पता चलता है कि आपका माइंड बहुत पीसफुल और स्टेबल है? कैसे पता चलता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड. आपका चेहरा मन का दर्पण है. 11:30 बजे तक ना वीडियो जरूर ऑन करना, आपके दर्शन हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और कैसा हो आपका चेहरा होना चाहिए पता है? मैं आई विल हेल्प यू आउट. आपका चेहरा होना चाहिए लाइक दिस, मुस्कुराता हुआ चेहरा. मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को ये फोटो दिखाया तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का तस्वीर है क्या? मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उसके सर में बहुत बाल हैं सर, और आप भी कुछ वैसे ही दिखते हो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर योर चाइल्डहुड स्वीट मेमोरीज माय डियर फ्रेंड्स. नो स्ट्रेस, नो टेंशन. रिमेंबर दोज डेज जब 2 महीने के गर्मी की छुट्टी से आप और हम बोर हो जाते थे, और बारिश की रिमझिम में हम लोग को पापा नया ड्रेस खरीद के देते थे और नए नए किताब खरीद के देते थे. और पता आप और हम क्या करते थे? वो किताब को खोलते थे, उसके सुगंध को देखते थे, बंद कर देते थे. करेक्ट? द रियलिटी इज फॉर द लास्ट 1 year आवर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स आर मिसिंग दिस. दे आर मिसिंग देयर फ्रेंड्स, दे आर मिसिंग द टीचर्स. एक साथ क्लास में बैठकर अपने इंजीनियरिंग प्रोफेसर का मजाक उड़ाना कितना अच्छा लगता था उनको, कितना हीलिंग होता था. They're missing all those things, my dear friends. Can we understand their challenges? I asked my father, who is 84 years of age. मैंने पापा से पूछा, पापा आपके इस जन्म में कभी आपने ऐसा चैलेंज फेस किया है क्या जो पिछले 1 साल से हम फेस कर रहे हैं? मेरे पापा ने कहा, नो माय डियर बॉय, हमको पहले बीच में थोड़ा बहुत वायरस पैंडेमिक होता था, लेकिन कुछ समय के लिए होता था और इतना न्यूज भी नहीं था, वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया था. लास्ट 1 year and today also we are speaking about the second wave and third wave करके इतना डर रहे हैं, right? And therefore it is very very important, right? तो क्या करना चाहिए? This small virus ने ना हम टीचर्स को एक बहुत अच्छी बात सिखा दिया. They taught us something very wonderful and beautiful. पता है मैंने क्या सीखा? आज तक as a teacher I always used to enter the classroom and tell my students, I want you to become successful, I want you to become successful, right? पता है अभी आजकल मैं वो डायलॉग नहीं बोलता हूँ. मैं जो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में देखता हूँ ना, मैं कहता प्लीज़ बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, आपके दर्शन हो जाएंगे ना, थोड़ा वीडियो तो ऑन करो ना. बहुत प्यार से बोलता हूँ, क्योंकि इट इज़ देयर ऑप्शन वेदर दे हैव टू स्विच ऑन और नॉट. और जब वो दर्शन देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं कहता हूँ अपने उसका नाम लेकर मैं कहता हूँ, आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है बच्चे कि अभी तक मैं आपको सक्सेस बोलता था, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है
कि more than success, I want you to be happy. I want you to be happy, my dear friend. और जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं ना, मेरे बच्चे हैप्पीनेस जब सुनते हैं ना, पता क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू बिकम हैप्पी, सर्च बटन क्लिक। आज तक मेरे स्टूडेंट सर्च कर रहे थे कि भारत का बेस्ट आईआईएम कौन सा है। आज तक मेरे स्टूडेंट सर्च कर रहे थे गूगल में कि विच इज द बेस्ट 10 यूके यूनिवर्सिटीज। बट द रियल क्वेस्ट ऑफ डिस्कवरी वाज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, वाज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने बच्चों को ये ऑनलाइन में बोलता हूं, all successful people are not necessarily happy, but all happy people one day certainly will become successful. कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। A small child smiles and laughs 300 times per day. ये तो बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स है। My dear all teacher friends, आप सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? जरा हैप्पीनेस इंडेक्स जरा चैट में लिखो। How many times you smile per day? और मैं आपका जरा गैलरी व्यू में दर्शन भी करता हूँ। कुछ लोग, ये संदीप जी आई एम एबल टू सी, घोष सर आई एम एबल टू सी, वंडरफुल वंडरफुल, मनीष गुप्ता जी आई एम एबल टू सी, ऑलवेज ऑलवेज, चौहान सर आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हो, यू गिव मी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। मनोज शर्मा जी थैंक यू, डॉक्टर वर्षा जी थैंक यू वेरी मच, आपके दर्शन होते ना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट नेहा जी कहती है 5 to 6 टाइम्स, अर्चना जी एवरी मिनट। आपका स्कोप बहुत, आपका करियर बहुत बहुत वंडरफुल अर्चना जी, राइट? यू हैव गॉट वेरी गुड स्कोप। मैंने ना एक बार अपने स्टूडेंट से पूछा, भाई कितनी बार मुस्कुराते हो? आपका एवरी टाइम एवरी मिनट देखकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था। तो मैंने उसको देखकर कहा यू आर मेकिंग फन ऑफ माई क्वेश्चन। ही सेड नो। तो मैं ऐसे जवाब क्यों दिया? तो उसने कहा सर देखा जाए तो वी आर सो सौभाग्यशाली, एटलीस्ट वी हैव गॉट 3 स्क्वायर मील्स टू हैव। Because every time in my class, I keep using the word सौभाग्यशाली. He picked up my word. सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। And before I could compliment him, he gave another logic. Sir, recent Jammu Kashmir flood, sir. उस समय जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था। Sir, you might have seen that breaking news and video, sir, the aircraft helicopters dropping those food packets, sir. सर नीचे जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना, वो कोई गरीब लोग नहीं थे सर, सारे देश और विदेश के पर्यटक थे, जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे। एक हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। Then he concluded his logic. Sir, should I wait for an impending disaster, a calamity, a tsunami, a bhukamp to get me convinced how saubhagyashali we are? Enough good reason for us to be happy and smiling, right? I'm very happy to share with you. हमारे टीचर्स का पता है सक्सेस पैरामीटर क्या होता है? और if not us, maybe students. Sir, if I get an admission to IIT, sir. You know, there are 23 IITs of our country. The first IIT is IIT Kharagpur. I'm very happy to tell you, IIT Kharagpur becomes the first IIT who has started a course on happiness. It has started a course on happiness. वहाँ के लोग सभी happy है या नहीं मुझे नहीं पता, but I remember some years before I was invited by the IIT Kharagpur. उस समय मुझे याद आता, उस समय they did not integrate happiness curriculum. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि happiness टीचर्स को, प्रिंसिपल को, डीन, डायरेक्टर, सबको उनको ज्यादा बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। बट व्हाट इज माय फ्लो ऑफ एनर्जी? आई रिमेंबर मेनी इयर्स बिफोर व्हेन आई वाज अ फुल टाइम फैकल्टी विद मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एंड वी ऑल नो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो 3-4 महीने में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, एंड एट द एंड ऑफ 4 months व्हेन माय स्टूडेंट्स आर रेडी टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था बच्चों जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला 10 क्वेश्चंस और एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो ना, जीवन के हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है। चौहान सर थोड़ा जोर से तालियां, तो आई एम एबल टू सी योर तालियां। वेरी गुड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिकॉज सब कुछ ठीक है तो उस समय हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल, इट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो हैविंग सेड दिस, this is the hypothesis. If I am peaceful and happy, I can make myself healthy.
health is a very important, challenging situation, and thereby make this world a beautiful place to live in, right? Having said this, आज जो भी मैं managing challenges बताऊंगा ना, it's a part of a very authenticated research done. मैं Google से या WhatsApp से आपने मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, और मैं कुछ challenges आपके सामने रखूंगा दोस्तों, right? फिर आपको पंछी की बात समझ में आएगी कि कभी-कभी situation हमारी भी तो पंछी जैसी है ना। लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे बच्चों को और भी डरा रहा है, डबल मास्क पहनना चाहिए और बच्चों का वेव आ सकता है, हम तो पंछी बन गए ना। ऐसे समय पर हम कैसे challenges को मैनेज करें? एंड आई कैन सी सम पर्सन इन द काइंड ऑफ अ किट आल्सो। हमारे मुदगल जी को मैं देख रहा हूँ, ही इज इन डबल मास्क, ही हैज पॉट अप अ शील्ड। आई एम एबल टू सी माय डियर फ्रेंड, एटलीस्ट इतना सा मास्क वास्क पहना सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है तो हाथ उठाओ। सुनाई दे रहा है मुदगल सर, बीपी मुदगल सर, गुड 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 गुड। See, we are all like Panchiya, my dear friends, right? This is a very wonderful research. And this research was jointly done by the DRDO and the Global Hospital, a hospital which is run by a spiritual organization which is called as the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya. तो मुझे जब कोई लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि आप इतने पढ़े हो, ये हो, वो मुझे कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं करता है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट of the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya for the last 25 years. So this is a joint research. मैं आज जो कुछ भी बोलूँगा, it is a part of this. आप वेबसाइट देख सकते हैं www.3dhealthcare.org. पता है ये रिसर्च किस पर हुआ था? हमको लगता है आपको हमको बहुत चैलेंजेस है, and I appreciate all the challenges. थोड़ा म्यूट करेंगे प्लीज, प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, हमको लगता है बहुत चैलेंजेस है, आई एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट ऑल द चैलेंजेस, लेकिन सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस होता है ना, एज पर DRDO, इट इज फेस्ड बाय द पुलिस फोर्सेस, द मिलिट्री एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। और आज के समय पर वही चैलेंज बहुत लोगों को होता है। आई विल कनेक्ट इट एज वी गो अहेड, लेकिन ये रिसर्च के आधार पर। तो दिस technology was used how to manage challenges through self empowerment. That's my topic. And the technology of self empowerment is called as meditation. This particular project started late 1998 mein start kiya, and it got winded up in the year 2006. And it is 8 years since I was also working in this particular project in the Department of Mind Body Medicine, and as well as my responsibility was to take this project to the Sarhad. इस तरीके से जो आज मैं आपको सेल्फ एम्पावरमेंट बता रहा हूँ ना, आई हैव इंटरेक्टेड विद इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CA, ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बताऊंगा, क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था ना, तो एक बच्चा ना मुझे घूर के देख रहा था। अब इतने साल से इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं ना, तो आई वाज एबल टू रीड हिज माइंड। तो मैंने धीरे उसके पास आकर कहा, तेरे मन में क्या खिचड़ी पक रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं सर, आप बोलते रहो सर। मैं कहा कुछ तो खिचड़ी पक रहा है यार, बता ना। नो सर, इट्स ओके सर, यू प्लीज कंटिन्यू योर सत्संग सर। मैं कहा ठीक है, तू इधर आ। आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड, सी आई मे बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, तेरे मन में क्या पक रहा है तू बताएगा, तभी तो मैं ठीक कर सकता हूँ ना। बोला सर सचमुच बताऊँ क्या? मैंने कहा बोल ना। एंड यू नो स्वामी नेवर गेट्स एंग्री ना, बोल ना। बोला सर बोलने में थोड़ा हिचक हो रहा है, लेकिन आप बोलते हो तो बोल देता, मेरे मन के अंदर क्या बोल ना यार, तू बोल ना, अभी तू ज़्यादा टाइम मत पास कर। बोला सर जब आप ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बोल रहे थे ना, इवन NSG, CBI, ऑल स्टेट पुलिस फोर्सेस, मेरे मन में पता क्या चल रहा था? मैं कहा तू फिर भूमिका बना रहा है, बोल ना। बोला सर मेरे मन में ये लग रहा था कि आप कितने फेंकते हो सर, सचमुच बहुत फेंकते हो। नाउ दैट इज अ टर्मिनोलॉजी दे यूज फॉर दैट प्रोफेसर हु स्पीक्स अ लॉट। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उस दिन मुझे लगा यार, व्हेनेवर यू टेल समथिंग ना, वन थिंग इज यू शुड बी वेरी हम्बल। नंबर 2, यस मैंने 30 रिसर्च पेपर्स किए, मेरे इतने PhD किया, मेरे को इतना ये, वी कैन ऑलवेज टेल ना, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी हम्बल, नंबर 1। नंबर 2, जो करते हो ना, मुझे लगा उस हिसाब से कि मैं सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं बताऊँ, मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी रखूँ। उसके बाद जब भी मेरा कोई प्रेजेंटेशन होता था ना, तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स जरूर दिखाता था। नाउ आई विल शो यू विद दिस फोटोग्राफ्स। इफ यू फील माई सेल्फ लिटिल ईगोइस्टिक, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा विनम्रता में लेकर आऊं अपनी वाणी में, बट आई विल शो यू दोस फोटोग्राफ्स। दिस इज इंडियन नेवी, करेक्ट। आई वाज डूइंग दिस सेशन मे बी 1.5 year बिफोर कोविड के समय पर, राइट। तो और मैं उनको एक ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वी आर ऑल अबाउट लाइफ के बारे में बता रहा था। तो मैंने कहा जान है तो, अक्सर जवाब मिलता है जहान है। यहाँ पर मैंने पूछा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी। राइट आंसर, राइट आंसर। भाई जहाज का ध्यान रखना बहुत जरूरत है।
उसी तरह हमारा शरीर जो है ना एक बहुत प्यारा सा जहाज है। वी वर डूइंग दिस सेशन फॉर द सदर्न नेवल कमांड। जो वाइस एडमिरल साहब थे उन्होंने हमारी सारी टीम को बुलाया, बोला स्वामीनाथन आप लोग कैडेट्स को, अपने ऑफिसर्स को, फैमिली मेंबर्स को, स्कूल में भी गए, सबको सेशन लिया, व्हाट कैन वी डू इन रिटर्न फॉर यू। मैंने कहा सर मैं कहीं पर भी जाता हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज में कोई सेशन लेने जाता हूँ तो मैं वहाँ इंडस्ट्री विजिट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो अभी मैं नेवी में आया तो आप मेरे को थोड़ा नेवल वारशिप का जरा दर्शन करा दो ना। अरे स्वामी सो सिंपल। तो इमीडिएटली बोला, उसके पीए को बुलाया, बोला ये स्वामी और टीम को ना थोड़ा जरा वारशिप दिखा दो। राइट, तो मैं आपको वारशिप पे लेकर जाता हूँ दोस्तों। दिस इज द टीम ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज यू नो इन द वारशिप, एंड यू कैन सी दिस 2 यंग नेवी ऑफिसर्स। तो ये 2 यंग नेवी ऑफिसर्स को मैंने कहा, वारशिप बहुत बड़ा जगह होता है, मेरे पास थोड़ा टाइम का थोड़ी कमी थी, मैं क्या काम कर, तू सबसे ज्यादा इस वारशिप में स्ट्रेस जहां होता है ना वहां तू लेकर जा। तो ये नेवी ऑफिसर जो था मेरे साथ, द 2 यंग पीपल यू सी, तो वो मुझे लेके जा रहे थे ना, तो इंजन रूम से गुजर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजन रूम में इतनी वो ग्रीस और ऑयल की वो स्मेल था ना कि आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। तो उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। मैं कहा यार आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। बोला सर ये 2 जो इंजन आप देख रहे हो ना सर, ये अभी बंद है, अभी चालू नहीं हुआ है सर, इसका ऑडियो भी सुनोगे तो क्या हालत होगी। उस दिन मैं सोच रहा था, व्हेन आई वाज अ प्रोफेसर, I used to take a subject of heat and mass transfer, internal combustion engine का मैं प्रैक्टिकल लेता था। तो बच्चों को मैं ना आईसी इंजन का प्रैक्टिकल कराता था। मैं बैठा रहता था, जो लैब असिस्टेंट होता था वो इंजन को स्टार्ट करता था, सब लोग नोट करते थे और फिर ग्राफ बनाते थे, मैं साइन करता था। उस दिन मुझे समझ में आया यार ये इंजन जो होता है ना, इसको एक्चुअली उसका ऑडियो सुनकर भी इन द इंडियन नेवल वॉरशिप में इतना स्ट्रेस होता है। कहा यार सचमुच यार, मैंने इतना साल मैंने पढ़ाया लेकिन इतना। बोला सर ये अभी चालू नहीं हुआ सर, और 2 है सर, एक बैकअप भी होता है। मैं कहा रियली वेरी ग्रेट यार, आपके प्रति तो मुझे बड़ा रिस्पेक्ट हो रहा है। बोला नहीं सर अभी तो वी आर ऑन द वे सर, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जगह तो मैं पहुंचा रहा हूँ। मैं कहा अच्छा इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग जगह क्या। बोला सर मैं आपको बताता हूँ। एंड देन थ्रू द इंजन रूम दे टुक मी टू दिस चेम्बर। अब आपने वो कार्टून शो देखा ना पंछी का, राइट, नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट। नाउ वॉरशिप के अंदर ये चेम्बर था, और फिर वो ऑफिसर ने कहा इस चेम्बर में ना करीब 6 से 8 लोग ना, ये जो रैक्स आप साइड में देखते हैं ना उसमें आप लेटते रहते हैं, छोटा सा चेम्बर। तो मैंने कहा यार वॉरशिप के अंदर ये चेम्बर क्यों रखते हो आप लोग यार, और 6-8 लोगों को इसके अंदर बंद क्यों करते हो। बोला सर जब हमारे ये वॉरशिप होता है ना, जब सागर में जाता है ना, फॉर सम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और फॉर सम मेंटेनेंस सर ये लोगों को उतरना पड़ता है, तो दे हैव टू एक्लेमेटाइज देमसेल्व्स। मैंने कहा कैसे एक्लेमेटाइज करते हो। बोला सर सागर के नीचे की जो एनवायरनमेंट होती है ना, वो एनवायरनमेंट हम लोग इस चेम्बर में क्रिएट करते हैं। मैंने कहा क्या करते हो आप। बोला सर धीरे धीरे इसमें से ना ऑक्सीजन खींचते हैं सर। दिल्ली और दूसरे जगह में जब ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का जो सीन देखा ना, तब मुझे ये नेवी कमांडोज बहुत याद आते थे। वहां पर्पसली उस चेम्बर में से ऑक्सीजन को खींचते हैं और वो गैस भरते हैं जो सागर के नीचे होता है। मैंने कहा भोजन का क्या करते हो। बोला सर एक छोटा सा पाइप होता है और लास्ट में यू कैन सी एट द फैग एंड देयर इज अ स्मॉल वॉशरूम, 6 to 8 days। और पता है उस ऑफिसर ने कहा, एडमिरल साहब ने कहा कि स्वामीनाथन और टीम को ना ये चेम्बर जरूर दिखाना। मैंने कहा क्यों दिखाने की बात कर रहे हैं। बोला सर राइट, हमको लगता है कि हम एक्लेमेटाइज करते हैं, हम शक्तिशाली बनते थ्रू फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट हमारे एडमिरल साहब ने कहा यहाँ पर कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते सर। तो जहाँ पे शरीर का एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते ना, वहाँ पर एम्पावरमेंट के लिए मन का एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दो। मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। डोंट गेट मी रॉन्ग है, हमको हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। मैं वर्तमान समय पे जो पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एन एमएससी योगा ऑल्सो, सो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट द चैलेंज दैट दीज पीपल आर फेसिंग इनसाइड द चेम्बर। वहां वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। सागर के तले से दोस्तों मैं आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। I am at 12,000 feet up and this is a Siachen battle school at 12,000 के फुट पर, राइट। 12,000 का फुट अगर आपको समझना है तो दार्जिलिंग इज 7,000 feet up, राइट। और यहाँ पर मैं उनको वो मेडिटेशन सिखाने के लिए, द एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, दे टुक मी टू 18,000 feet up and our soldiers and jawans are at 28,000 feet up, 28,000। Darjeeling is 7,000, 4 times in Darjeeling।
when you board a flight, take off करते हो ना मुंबई एयरपोर्ट से या दिल्ली एयरपोर्ट से, so the maximum altitude that your commercial this one goes is around 30 to 35,000 feet up. Now the question is, विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में आप अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं, क्योंकि वहां पर अगर आप गहरी श्वास लोगे ना, वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा. टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, ऑक्सीजन कंटेंट इज टू लो देयर. देखिए, आपको प्राणायाम अच्छा लगता है तो आप जरूर करिएगा, मैं करता हूं. सो लेट्स नॉट डिबेट वेदर इट इज गुड और बैड, लेट्स नॉट डिबेट ऑन टू इट. बट मैं बोल रहा हूं कि जब एक व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है तो वो कौन सा एक्सरसाइज करे? मैं पूछ रहा हूं, प्रेजेंट चैलेंज ये है कि वो क्वारंटाइन में अकेला पड़ा है. Which exercise should we recommend to that particular person? This is something that we need to ask ourselves and try to get a solution. मैंने लेफ्टिनेंट अभिषेक जो सियाचिन में थे ना, उनसे पूछा, आपका दुश्मन यहाँ से कितना दूर है? राइट, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो दुश्मन होता है ना. उसने कहा, सर विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में अगर आप खड़े हो ना, तो दुश्मन कौन है आपको मालूम होना चाहिए. मैं कहा वही तो पूछ रहा हूँ भाई, बाजू वाले कंट्रीज ही हमारे दुश्मन होते हैं, कितने दूर खड़े हैं वो? क्योंकि कुछ विजिबिलिटी, जीरो विजिबिलिटी. मैं खुद ही अपने आप को देख नहीं पाता हूं, मैं दूसरों को क्या देखूं? इट्स एक्चुअली जीरो विजिबिलिटी. मैंने पूछा कितने दूर होते भाई? तो अभिषेक ने बहुत प्यारी बात बताई. उसने कहा, सर विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में हम किसी देश या किसी सामने वाले व्यक्ति से युद्ध नहीं करते सर. उस पर विजय होने का हमारे कोई लक्ष्य नहीं होता है. वी डोंट वांट टू बिकम सक्सेसफुल ओवर अदर्स सर. विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में हम जो कोशिश करते हैं सद्भावना के साथ रहने का, वो है प्रकृति के साथ, नेचर, प्रकृति. और फिर अभिषेक ने मेरा जनरल नॉलेज को बढ़ाया. उसने कहा, सर कभी आपने सुना सियाचिन में 2 देश के बीच में फायरिंग होते हुए? मैंने कहा नहीं. बोला, सर लेह लद्दाख में हो सकता है, जम्मू बॉर्डर में हो सकता है, गुजरात राजस्थान बॉर्डर में हो सकता है, अरुणाचल बॉर्डर में हो सकता है सर, लेकिन हाईएस्ट बैटलफील्ड में आज तक आपने ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुना होगा. मैंने कहा यस. बोला, सर यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, क्योंकि विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में अगर आप जिस जगह खड़े होकर जीवित हो ना, वो जगह आपकी. जैसे होता था ना, कभी कभी हम लोग बस चढ़ते थे तो बेस्ट बस होती थी या गवर्नमेंट की बस होती थी ना, या रेलवे कंपार्टमेंट में जो जनरल कंपार्टमेंट होता था, तो हम खिड़की से ना अपना बैग डाल देते थे. बैग डाल दिया, वो जगह मेरी भाई. इट वॉज एन अनरिटन रूल. द सेम अनरिटन रूल इज देयर एट द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड. अगर कोई व्यक्ति उस सिचुएशन को मैनेज करके जीवित रह सकता है, तो वो जमीन आपकी, वो जमीन आपकी, वो जगह आपकी. जाते जाते अभिषेक ने एक बहुत प्यारी सी बात बताई. बोला, सर जब हम नेचर की बात करते हैं ना, 2 प्रकार के नेचर होते सर. वन इज द आउटसाइड नेचर, नंबर 2 इज द इनर नेचर. एंड माय डियर सर, इसने मुझे सिखाया, आउटसाइड नेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड. भूकंप आता है तो हम कहते हैं धरती में इतना गुस्सा क्यों करती है, और सुबह से शाम तक हम प्रोफेसर्स जो बच्चे पर गुस्सा करते हैं, कभी हमने इस पर चिंतन किया क्या? Have we ever introspected ourselves? And that is beautiful learning that I learned from the world's highest battlefield. And therefore it is very important managing challenges. इंजीनियरिंग से घूमते घूमते मैं मैनेजमेंट पर आता हूँ. एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? बोला, सर द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल सर. मैंने कहा, यार ये आउटडेटेड डेफिनेशन मत बता. टेलर के जमाने का डेफिनेशन, गुलामी के समय का डेफिनेशन बताता है, कुछ अच्छा डेफिनेशन बता ना. तो एक स्टूडेंट ने बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दिया, सर मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मेन, मटेरियल, मनी, मिशनरी एंड मेथोडोलॉजी सर. एंड दिस इज व्हाट एवरीबॉडी डज. वो छोटा स्टूडेंट होगा, या हमारी जीवन साथी घर हाउसवाइफ होगी, या सीएम या एचएम होगा, या कोई भी होगा, या पीएम होगा, सब लोग करते यही हैं. मैंने कहा वेरी गुड आंसर, मेन, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथोडोलॉजी. बट मैंने उनको कहा, बट ऑल दिस 5M कैन ओनली बी मैनेज्ड व्हेन वी आर एबल टू मैनेज द 6th M, दैट इज द माइंड. हमारा मन है जो ये पांचों को मैनेज करता है. और फिर मैंने अपने बच्चों से पूछा, बचपन से लेकर टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिलेबस यू स्टडी अबाउट द माइंड? और मेरे बच्चे इतने प्यारे, इतने मीठे, इतने क्रिएटिव, इतने कलरफुल, इतने चीयरफुल, एक खड़े होकर कहता है, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. फिर हम पढ़ते क्या हैं और हम पढ़ा क्या रहे हैं? व्हाट आर माई टीचिंग एंड व्हाट आर माई लर्निंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर माइंड. अगर मैं आपके मन के बारे में पूछूं ना, हम सभी प्रोफेसर्स को मन के बारे में पता है. 1 इज फिजिक्स, नंबर 2 इज अप्लाइड फिजिक्स.
मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, सेम थिंग। हमारे पास सबके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो जरूर है, हम कितना अप्लाइड नॉलेज करते हैं। और आज का थियोरी के बाद ना, और जब आपका एफडीपी खत्म हो जाएगा ना, फिर अगर हमको देखते वेदर, चलो सर्टिफिकेट तो एआईसी से मिलता रहता है, और मैंने देखा कुछ प्रोफेसर के पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स, एआईसीटी के इतने सारे सर्टिफिकेट्स। वेरी गुड यार, वी शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी, वी शुड बी ग्रेटफुल टू एआईसीटी दैट दे आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ एफडीपी, वी शुड अप्रिशिएट इट। हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमको सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन मैं कितना अप्लाई करता हूँ, हाउ मच डू आई अप्लाई, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पता है उसका सिंपल बैरोमीटर क्या है? मैं आपको 3 चीज बताता हूँ टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू बिकम क्वालिटी पर्सन। ये तीनों स्वामीनाथन में है, इसलिए मैं चाहूंगा इफ यू कैन ज्वाइन द क्वालिटी क्लब। नंबर 1, हाउ मेनी ऑफ यू, है ना, यू लव डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी? पुट ए यस ऑन द चैट। और अगर आप मेरे क्वालिटी क्लब में जोड़ सकते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, यस यस, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग शायद लिख नहीं रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम। नंबर 2, how many of you want your work to be very systematic, organized, perfect? Put a yes on the chat. Put a yes on the chat. Very good, very good. अब 2 में yes नहीं लिखा ना, 30 में yes, तीसरे में जरूर yes लिखना। How many of you, my dear friends, जिनको स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है कि भाई घर स्वच्छ होना चाहिए, हमारा स्कूल स्वच्छ होना चाहिए, हमारा कॉलेज स्वच्छ होना चाहिए, प्लेटफॉर्म स्वच्छ होना चाहिए, हॉस्पिटल स्वच्छ होना चाहिए? यस यस यस, गुड। तीनों में भी अगर आपने किसी एक में भी यस कहा ना, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज इज यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक। आपको हार्ट अटैक जरूर आएगा, बी वेरी श्योर। सर क्या बात करते हो सर, आज सब हमको ट्रेनिंग दिया गया था, पंचुअल रहना, डिसिप्लिन रहना, स्वच्छ भारत कैंपेन में झाड़ू मारना, फोटो खींचना, भेजना। सर क्या बात करते हो, हमको हमेशा हमारे टीचर्स ने यही सिखाया, परफेक्ट, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक। सर क्या सिखा रहे हो आप सर? राइट, हेलो 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 हेलो, डोंट रिएक्ट, होल्ड ऑन यार, स्वामी पर बरसो नहीं ना यार, मैं कितना प्यार, मोहब्बत, स्नेह से मैं बोल रहा हूं। डोंट गेट एंग्री विद स्वामीनाथन, लुको, सुनो ना। आपने यस कहा ना, यू आर वेरी वंडरफुल पर्सन, यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू लाइक पंक्चुअलिटी, इफ यू लाइक डिसिप्लिन, इफ यू लाइक स्वच्छता, इफ यू आर अ सिस्टमैटिक पर्सन, माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, उसके कारण आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक मुझे और आपको तब आएगा when I expect the whole world to be like me. मुझे दिल का हार्ट अटैक तब होगा when I expect everybody to be like me, right? And Swami is a type A personality, very punctual, very, मतलब मुझे टाइम पर आना बहुत अच्छा लगता है। और पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन स्टूडेंट्स पर आता था when they come late in my class, बहुत गुस्सा। और जब मेरे स्टूडेंट्स लेट आते मैं भड़कता था, why did you come late? Punctuality, discipline, very important in your life. How will you become an effective engineer? जब मैं डीआरडीओ के प्रोजेक्ट से जुड़ा ना, ब्रह्मा कुमारी की साइंटिफिक रिसर्च से जुड़ा ना, तो डीआरडीओ के डॉक्टर्स ने मुझे बहुत प्यार से सिखाया, बोला स्वामीनाथन, if you want to be healthy, you need to learn how to be peaceful and happy. Don't get angry, my dear friend. मुझे लगा वो डॉक्टर को ही 2 लगा कर दूं। मैंने कहा मुंबई के बच्चे सर, इंजीनियरिंग बच्चे सर पर चढ़कर बैठते हैं सर, जब तक 2 लगाते नहीं सुधरते नहीं है सर। और बोलते बोलते एक डायलॉग बोल दिया, सर आपने सुना नहीं होगा सर, लोहा लोहे को काटता है सर। वो डॉक्टर बड़े मुस्कुराते मुझे कहा, स्वामीनाथन आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने कहा पढ़ने के लिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। बोला फिर तो मेटलर्जी समझे ही नहीं होगा। मैंने कहा सर आप समझा दीजिए। बोला स्वामी, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। जब एक आयरन पीस को आप भट्टी पे चढ़ा देते ना, इट लूजेस इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टीज। अ पर्सन हु गेट्स एंग्री, इरिटेटेड, राइट, मीन्स उसका माइंड कमजोर है। दैट पर्सन नीड्स हेल्प, दैट पर्सन नीड्स हेल्प, राइट। और जाते जाते डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी टेक केयर ऑफ योर हार्ट है, टेक केयर ऑफ योर हार्ट। पता है जब मैं क्लास में गया ना, मैंने अपने आप से पूछा, यार इतना गुस्सा करता था, पता नहीं कितने आर्टरीज ब्लॉक हो गए होंगे, राइट। अब पता है जब स्टूडेंट कोई लेट आता है मैं क्या करता हूँ मालूम, बहुत प्यार से अपना हाथ दिल में रखता हूँ, वही डायलॉग जो गुस्से से बोलता था ना, अभी बड़े प्यार से बोलता हूँ, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? मेरे स्टूडेंट सारे घूर के देखते हो, पता क्या कहते, स्वामी सर
जब से आप मेडिटेशन सीखने लगे ना सर, आप सुधर गए हो सर, हर दिन वहीं जाते रहना सर, आप सुधरते जाओ सर। When I share this with my faculty members in the staff room, नहीं सर आजकल के ज़माने ये सब नहीं चलता है। और डॉक्टर कलाम के रिसर्च को समझने के लिए ना उस हाई लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा अपने प्रोफेसर्स के साथ डिबेट भी नहीं करता हूँ, राइट। मुझे याद आता कुछ समय पहले आई वॉज इन ऊटी, राइट। ऊटी इज़ माई बर्थ प्लेस इन तमिलनाडु। अचानक मुझे एक स्टूडेंट मिला, हेलो सर, हाउ आर यू सर। I started staring at him. Sir, do you recognize me? मैं कहा यार तू अपना नाम वाम मत पूछ। Sir, I'm so and so sir. Please sir, you taught us in so and so year. मैं कहा ऊटी में क्या कर रहे हो? सर ऊटी में सर फैमिली ट्रिप में आया हूँ, वाइफ और बच्चे। इधर इधर इधर, ये हमारे स्वामीनाथन सर मैकेनिक सॉम टॉम के साथ मेडिटेशन सिखाते थे। मैं कहता यार आज बोर मत कर उनको, यू हैव कम ऑन अ फैमिली ट्रिप सर। मैंने उनको बोला फैमिली ट्रिप, डोंट वरी, आई ब्लेस ऑल ऑफ यू विथ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। और उस लड़के को लेके जाओ, फैमिली को लेकर जाओ ना, दे हैव कम फॉर एंजॉयमेंट। मेरा स्टूडेंट पता है क्या करता है, वो अपनी फैमिली और बच्चों को थोड़ा दूर लेकर जाता है, वापस आता है और कहता है सर कैन आई शेयर विथ यू समथिंग। मैंने कहा बोलिए। बोला सर पता नहीं आजकल इतना गुस्सा आता है सर, राइट। मेरी वाइफ पर भी गुस्सा करता हूँ, बच्चों पर भी गुस्सा करता हूँ सर। आज आपको देखा तो लगा सर आई हैव टू टेक सम ट्यूशन क्लासेस ऑफ मेडिटेशन सर। मैं कहा यार वेरी गुड। बोला सर मेरे गुस्से के कारण वाइफ भी बहुत परेशान रहती है, उसको भी ले आऊँ क्या मेडिटेशन। उस दिन मुझे समझ में आया आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, हमें मन के बारे में सब कुछ पता है, हम प्रोफेसर्स वी आर ऑल वेरी बुद्धिशाली, लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ एज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि आप लोग फेलो टीचर्स हैं और हम टीचर्स को ना जब तक होमवर्क हम नहीं देते ना हमको रात को नींद नहीं आती है। अ स्मॉल होमवर्क माय डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके साथ स्वामीनाथन भी करेंगे, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। फटाक से रिएक्ट मत करो, फटाक से रिएक्ट मत करो। पर्टिकुलरली डोंट रिएक्ट विथ योर चिल्ड्रन। वो छोटे बच्चे हो सकते हैं, एडोलेसेंट हो सकते हैं, यंगस्टर्स हो सकते हैं, डोंट रिएक्ट। इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्ड करो। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो रिस्पॉन्ड आप तभी कर सकते हो व्हेन यू मेक योर माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड। आप अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाओ दोस्तों। और पता है मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज मेकिंग योर माइंड अ गुड फ्रेंड। मुझे आइंस्टीन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने सिर्फ फिजिक्स नहीं समझा, वो मेटाफिजिक्स भी समझे। आइंस्टीन पता क्या कहते हैं? आइंस्टीन कहते हैं नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की अवस्था, हमारी मन की स्थिति। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि मन का काम है संकल्प करने की शक्ति। कैन वी मेक आवर माइंड अ वेरी बेस्ट फ्रेंड? मन को बहुत अच्छा दोस्त बनाना। लेट मी शेयर द स्लाइड फॉर यू। कैन वी मेक आवर माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड? यस, करेक्ट। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा मूड आउट हो जाता है, राइट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इधर उधर हो जाता है ना, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। अचानक आपके बहुत अच्छा दोस्त और आपकी बहुत प्यारी सखी का फोन आ जाता है। हेलो हेलो सुनते ही साथ उनको समझ में आ जाता है कि भाई इसका मूड आउट है। क्या हुआ? ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। यू नो, फ्रेंड और सखी पता क्या करती है? सुनती रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। बहुत सुनने के बाद बस एक डायलॉग बोलती है, यार सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, और फोन रख देती है। आपने और हमने अनुभव किया है कि जब भी अच्छे दोस्तों से बात होती है ना, वी फील बहुत हल्कापन महसूस होता है, जैसे लगता है बहुत बड़ा जो बोझ सर पे था ना वो उतर गया। नो सॉल्यूशंस एट ऑल, बट वी ऑल फील दैट, राइट? कैन वी मेक आवर माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड? तो मन से बात तो करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई अंडरस्टूड दैट यू लव खिचड़ी लैंग्वेज, so I speak in English, I switch on to Hindi. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല. I need to understand the target audience, यार, the language. मेरे स्टूडेंट्स कौन सा लैंग्वेज समझते हैं मालूम होना चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज ऑफ बाइनरी मशीन लैंग्वेज, zeros and ones. So my dear friends, let me ask you a general knowledge question. What is the language of the mind? मन से बात करना है तो मन की भाषा मालूम होनी चाहिए ना। मन की भाषा कौन सी है? जरा चैट में लिखो, put it on the chat. Yes, put it on the chat. What is the language of the mind? Language of the mind, put it on the chat. कोई लिखता नहीं है। What is the language of the mind? मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, एक ने खड़े होकर कहा सर इट इज आउट ऑफ सिलेबस सर, मन की भाषा कुछ नहीं। अच्छा, कोई कहता है इट इज इमोशंस, एंड द बेस्ट इमोशन, कौन सा इमोशन? कौन से इमोशंस? कौन से इमोशंस? कौन से इमोशन भाई? यस,
इट इज, हाँ, सम से द इमोशन, कुछ लोग मुझे डायरेक्ट चैट में लिख रहे हैं, सो द इमोशन ऑफ लव, प्रेम। मैं आपको बताता हूँ, राइट, माँ का ना बच्चे से बहुत प्यार होता है, राइट, तो माँ कहती है, एंड आई एम टुडे वेरी हैप्पी, इट्स द वर्ल्ड मेडिटेशन डे आल्सो टुडे, दैट्स व्हाट समबडी वाज टेलिंग मी। तो माँ का बहुत प्यार, एंड मेडिटेशन इज ऑल अबाउट हीलिंग, तो माँ का बच्चे से बहुत प्यार होता है ना, तो माँ डायलॉग बोलती है, माय डियर चाइल्ड आई लव यू। लव इज एन इमोशन, द लैंग्वेज इज इंग्लिश। हिंदी में अगर माँ को बोलना तो माँ क्या कहेगी, बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मलयालम में बोलना होगा तो माँ क्या कहेगी, ज्ञान निंडते वालर कुल स्नेह निंड। बंगाली में बोलना होगा तो माँ बच्चे से क्या कहेगी, अमे के तुम्हें बालो बच्ची। इमोशन इज लव बट द लैंग्वेज इज, चलो मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा है, चलो छोड़ो यार, मन आउट ऑफ सिलेबस है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर, पुट इट ऑन द चैट। नाउ डोंट से आउट ऑफ सिलेबस यार, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर, पुट इट ऑन द चैट, पुट इट ऑन द चैट। भाई एक इंजीनियर की भाषा क्या होती है, सब लोग शर्मा रहे क्या, कैलकुलेशंस, वाह यार, आपको सपने में भी कैलकुलेशंस आते होंगे क्या, बागची जी, सत्यजीत जी, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। बाबा कितना प्यार से पूछ रहा हूँ, माय गॉड माय गॉड। सर इफ आई एम गेटिंग डिलेड ना चौन सर, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम सर, आई मे ओवरलैप विद द अदर फैकल्टी आल्सो सर। हमारे लोग सही जवाब नहीं दे रहे सर। हाँ डॉक्टर सीतारामन जी, आई सल्यूट यू सर। द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर इज ड्राइंग, द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज ड्राइंग, द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस, चित्रों की भाषा। और मेडिटेशन में ना ये मन की भाषा समझना जरूरत है। आई गिव यू अ हिंट, छोटा सा एक्सरसाइज ऑफ द माइंड में बताता हूँ जो मैं नेवी वालों को और सियाचिन में सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द अर्ली मॉर्निंग सनराइज, अर्ली मॉर्निंग सनराइज विच कलर, सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग होता है, लिखो चैट में, अर्ली मॉर्निंग सनराइज विच कलर, ओके, अर्ली मॉर्निंग सनराइज रेड, रेड, गुड 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 गुड, ब्यूटीफुल। अब देखो, नो आई एम फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री, अभी तो मैं मुंबई में हूं लेकिन मैं लॉकडाउन पूरा केरला में था। आई विल शो यू गॉड्स ओन कंट्री का ना, या दिस इज द इमेज, लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस, इट्स ड्राइंग, इट्स ग्राफिक्स, राइट, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग सनराइज, देखना बड़े प्यार से देखना, ओके। अब एक काम करते हैं, वी विल डू एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, ठीक है। अपने स्थान पर बैठकर अर्ली मॉर्निंग सनराइज को आप मन से देखो, सुबह सुबह का सूर्योदय, मन से देखना, राइट, और देखना वो जो सूर्य का जो प्रकाश है ना, धीरे धीरे मन से देखना, धीरे से आपके पास आ रही है। और अगर आपने मन से ये देखा ना, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, यू विल बिकम वेरी हेल्दी। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी पावर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ कोरोना, which 2 vitamins are required? Put it on the chat. Put it on the chat. कौन से 2 विटामिन की जरूरत है? Put it on the chat. लिखो ना, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं हैप्पीनेस भी चाहिए ना, वो तो चाहिए चाहिए। इट इज अ कॉम्बो ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब विटामिन डी कहां से मिलता है? सूर्य प्रकाश से। आप घर के अंदर बंद पड़े, आप जो हो चेंबर के अंदर बंद पड़े हो, आप उस सियाचिन में हो जहां सूर्य प्रकाश देख नहीं सकते, विटामिन डी कहां से लेकर आए? दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, राइट। मैंने अपने ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट्स को ये बताया, बोला सर कैसे हो सकता है सर? मैं कहा यार डॉक्टर कलाम का थोड़ा रिसर्च पेपर पढ़, तेरे को समझ में आएगा। अब बच्चों को कहाँ पे रिसर्च पर इतना स्ट्रेस देना। मैं क्या काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग सब लोग करना, ठीक है। प्लीज डू दिस सिंपल एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। आराम से अपने स्थान पर बैठिए, आप अपने घर में होंगे, ऑफिस में होंगे, कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, बट वेयर एवर यू आर रिलैक्स, मन के द्वारा ना 1 सेकंड आप घर पर पहुंचिए, मन के द्वारा, ठीक है। आप घर पर ही हैं तो ओके। फिर मन के द्वारा आप अपने किचन में जाइए, गो टू द किचन एंड गो क्लोज टू द फ्रिज। धीरे से फ्रिज को खोलिएगा, टेक अ नींबू, अ फ्रेश नींबू, यू कैन सी द फ्रेशनेस ऑफ दैट नींबू विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एक चाकू लीजिएगा, उस नींबू को कट करिएगा और उस नींबू को एक ग्लास में निचोड़िएगा। मन से देखते रहिए, निचोड़ते रहिए, दैट्स इट। How many of you were able to generate saliva in your mouth? Put a yes on the chat. आपने अगर मन से एक्सरसाइज किया, वाओ नेहा जी, yes 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 yes, I'm getting so many messages in direct chat also. My God, yes 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 yes, breaking news for today. वैसे भी बहुत दिनों से तो हम लोग न्यूज देखते नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक कि सुन सुन सुनकर we know what is happening. Breaking news for today, 2 news. Number 1,
your brain is perfectly working. And number 2, आपका मन आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपका मन आपकी बहुत प्यारी सखी बन गई है. Good breaking news for today. And your brain, your CPU is perfect. आपका एंडोक्राइन सिस्टम परफेक्ट. इस एक्सरसाइज से पता है क्या समझना क्या है, और ये एक्सरसाइज बहुत बार हमने देखा है, समझा है. पता है, our brain is not able to differentiate between a real event and an imaginary event. Please understand the psychology. The brain is not able to differentiate. सुबह से शाम तक अगर मैं अपने मन से ये बात कर रहा हूं, पता नहीं बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, उनका शादी का क्या होगा, उनका करियर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हाउस लोन का क्या होगा, your brain would release stress hormones, cortisols. इसलिए मन को बहुत प्यार से समझाना बहुत जरूरी है. कैसे करेंगे? द लास्ट पार्ट ऑफ माई सेशन, राइट? जब हम कहते हैं मेरा मन, माई माइंड इज माई वेरी गुड फ्रेंड, द $1 million क्वेश्चन इज who am I then? The third part, the self part. जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की तरफ से ट्रेनिंग देते हैं ना, बिकॉज फॉर द लास्ट 15 years आई एम नॉट अ रेगुलर फैकल्टी ऑफ engineering or MBA student, but I am associated with many industries across the country. I go for training, I am an HR consultant, बहुत जगह जाता हूँ. और कभी कभी मुझे कॉलेज के बच्चों से जब मैं मिलता हूँ तो मैं इनको यही कहता हूँ, whenever you apply for a, whenever there is a campus placement, तो बहुत सारे उसके हर कंपनी का अपना एक नॉर्म्स और रेगुलेशंस होता है. बट व्हेन यू कम टू द लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट वेयर एन HR इज गोइंग टू साइन, दे विल आस्क यू 2 questions. The first question they are going to ask you is, please introduce yourself. The second question they are going to ask you is, please tell your strengths and weakness. Please tell your strengths and weakness. कभी कभी बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम लोग जब कहते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो बड़े प्यार से बच्चे इंट्रोड्यूस करते हैं. सर माय नेम इज सो एंड सो, सर आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, सर माय प्रोजेक्ट्स आर सो एंड सो, माय हॉबीज आर सो एंड सर प्लीज गिव मी सो मच ऑफ सैलरी ऑल्सो. तो कभी कभी मैं बच्चों को कहता, आपने जो कुछ भी कहा वो तो हम आपके बायोडाटा में तो था ही ना, देन व्हाई आर वी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन? कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वी आर चेकिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. नो, नॉट रियली, बिकॉज इंजीनियर हो तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स तो होगा ही होगा. एंड आई एम नॉट रिक्रूटिंग यू टू टीच ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर माई चिल्ड्रन यार. बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज वेरी गुड इनफ. देन व्हाई आर वी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन? क्योंकि हर व्यक्ति के प्रति एक इमेज होता है. इसलिए अर्चना जी ना मेरे सेशन के पहले ना मेरा इंट्रोड्यूस कर रही थी. पता है वो इंट्रोड्यूस क्यों करती है? वो ना मेरा ब्रांडिंग करती है, मेरा मार्केटिंग करती है. यार इन्होंने ये किया, राइट? प्लीज जरा थोड़ा बैठकर सुनो तो सही. लेकिन पता है, आपने जितना भी PhD किया, कुछ भी किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट थैंक यू फॉर मार्केटिंग वी प्रोफेसर्स एंड टीचर्स. हम लोग बहुत मुखौटा पहनते हैं. I may say I did program session with Dr. Kalam, blah 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 blah. मैं इतनी जगह गया, 250 इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. What is very important is लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा important, what is the image that Swami has for oneself? I can fool the whole world, but Swami cannot fool Swami. मैं अपने आप को तो बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता. इसलिए the next question is very relevant. Please tell your strength and please tell your weakness. और मुझे लगता है कि मुझे वो बेस्ट जवाब लगेगा जब एक कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर once upon a time my mind was my greatest strength. आज शायद मैं अपने मन को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है सर, बट आई विल वर्क ऑन माई स्ट्रैटेजी टू अगेन मेक माई माइंड अ गुड फ्रेंड एंड thereby द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. अगर किसी बंदे ने ये जवाब दे दिया ना, भले वो मैकेनिक्स 3 बार सप्ली मिला होगा, ATKT मिला होगा, मैं उस बंदे को ना अपनी इंडस्ट्री में ले लूँगा. क्योंकि स्किल्स कैन ऑलवेज बी लर्नड माय डियर फ्रेंड्स. 15 साल से मैं HR में काम कर रहा हूँ और 15 साल का मेरा ये अनुभव कहता है, राइट, स्किल कैन ऑलवेज बी लर्नड. लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने नेचर को मैनेज नहीं कर सकता ना, वो पूरे इंडस्ट्री को परेशान कर देता है. ही मे बी हाईली क्वालिफाइड, उसके सुपीरियर्स उससे तंग होते हैं, जूनियर्स उससे तंग होते हैं. और मैं देखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में तंग हुआ है ना, उसकी वाइफ भी उससे तंग होती है, बच्चे भी तंग होते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर जगह हम लोग वो मुखौटा पहन के जा सकते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना जरूरत है. टू अंडरस्टैंड द सेल्फ,
अब प्रश्न उठता है कि मैं हूं कौन, मेरा मन, तो मन को तो मैं ही ध्यान रखूंगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कभी कभी हम टीचर्स ना बच्चों को डायलॉग बोलते हैं, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है ये आज तक नहीं बताया, सेल्फ क्या है ये आज तक नहीं बताया। टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ, SELF। द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ इज, एंड दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो। स्लाइड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साल पहले जब हम किसी से मिलते थे ना दोस्तों, तो हम लोग पूछते थे हाउ आर यू, एंड टुडे आई वाज लिसनिंग टू मेरी जी व्हेन शी सेड वी शुड नॉट बी आस्किंग द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी शुड आस्क अदर्स हाउ वेल आर यू। बट एक साल में जो मेरा अनुभव कहता है, मोर देन हाउ आर यू, हम लोग क्योंकि मास्क पहनते हैं ना, डबल मास्क पहनते हैं, तो सामने व्यक्ति कौन है पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग पता क्या कहते हैं, वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी आस्क द क्वेश्चन हु आर यू, हु आर यू। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पता है सेल्फ का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सेल्फ इज SELF। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म, source of energy in light form. Drop a line from here, drop a line from here, meeting point, hypothalamus gland और pituitary gland के बीच में point of light, point of energy. सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद आत्मविश्वास। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इट इज कॉल्ड एज एनर्जी। इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम डायनेमिक्स इट इज कॉल्ड एज क्वांटा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। पता आज के जमाने में जो सबसे बड़ा जो डर है ना, इट इज द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। 100 out of 100, 100 out of 100। इसलिए द मिलिट्री एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे। अगर मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, डर लगता है, सबसे बड़ा डर। इसलिए आप देखते लोग इतना रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अंदर डर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। द ग्रेटेस्ट फियर इज द फियर ऑफ डेथ। और यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स, राइट, मुझे याद आता, आई वाज डूइंग अ सेशन फॉर द इंडियन एयरफोर्स इन यलंका, बैंगलोर। तो आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द ऑडिटोरियम, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, सर आपको पता है किस ऑडियंस को आप एड्रेस करें? मैंने कहा यस, दे आर पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताइए। बोला सर दे फ्लाई द सुपरसोनिक जेट, स्मॉल एरर एंड इंपैक्ट एंड कोलिजन सर, चकनाचूर सर, प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं ऑडिटोरियम में गया और मैं जब ये इसके बारे में बता रहा था, तो मैंने ऑडियंस से पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? एवरीबडी अग्रीड द फियर ऑफ डेथ। एक पायलट खड़े होकर कहते नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है सर। तो मैंने उस व्यक्ति को देखकर कहा, जेंटलमैन व्हाट यू सेड इज वेरी करेक्ट, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का डर होगा। एम आई राइट? तो सोचने लगे। उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है अपने भाई, अपने हस्बैंड को, तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिशुम ढिशुम ढिशुम, World War III। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता है, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वंस। और जब गवर्नमेंट कहती है ना कि सेकेंड वेव हैज हिट द एडोलेसेंट, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव, इट मे हिट चिल्ड्रन। जस्ट इमेजिन what is the emotions of we parents, our loved ones, our innocent kids. Just imagine the emotions. पता है क्या करना आज क्या करना पता है? आज ना अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखना, और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो छोटू पूछेगा मम्मा आज आपका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ क्यों है? बड़े मुस्कुराते हुए उसको देखकर कहना, बच्चे टुडे आई अंडरस्टूड हु एम आई। तो छोटू पूछेगा मम्मा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना, बहुत मुस्कुराते हुए इस बच्चे से पूछना, माय डियर चाइल्ड डू यू नो हु आर यू? मम्मा हु एम आई, हाथ रखे ना सर पर, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल टू दैट बॉय। से पूछना, माय डियर बॉय, माय डियर स्वीट हार्ट, डू यू नो हु आर यू? छोटू पूछे मम्मा मैं कौन हूं बताओ ना। उसको मुस्कुराते हुए कहना, बच्चे आप हो तारे जमीन पर। छोटू को इतना अच्छा लगेगा, कहेगा अच्छा मम्मा फिर आप कौन हो? तो उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाना और कहना, माय डियर चाइल्ड आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
I am a twinkle, twinkle, little star. Standard LKG syllabus. Meditation begins with the self. Begins with the self. I will wind up my session with meditation. लेकिन जब मैं सियाचिन गया था ना, और जब मैं उनको मेडिटेशन सिखा रहा था, मैंने कहा जो मेडिटेशन जो है ना, इट्स योर LKG सिलेबस. पता है क्या सिलेबस है वो? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. बच्चे से पूछना, ऊपर देखकर ये यू कौन है, यू कौन है? क्योंकि तारे जमीन पे तो हम तारे हैं ना, एक्चुअल वी आर स्टार्स, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये यू कौन है? इट इज द ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर, भगवान. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world, so high, like a diamond in the sky. जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह जैसे शरीर, एक छोटा बच्चे के शरीर को देखकर उसके माता पिता को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरह मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा के पिता वो परम ज्योति. हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं. अगर आप देखिए शिवलिंग को देखिए, 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु, राइट. गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सत्य नाम ओमकार, सत्य एक निराकार परमात्मा है. जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट. भगवान प्रकाश स्वरूप है. हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है. नूर मीन्स, माँ कहती है ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है. नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश. भले हम किसी भी धर्म जाति की क्यों ना हो, हमें अपने स्वधर्म पर टिकना है. बाकी जो धर्म चारों तरफ चल रहा है ना, वो शरीर का धर्म, लेकिन आत्मा का स्वधर्म पर टिकना ये बहुत बहुत जरूरी है. और फिजिक्स में हमने सीखा है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. तो मन को बहुत अच्छा दोस्त बनाकर मन को उस खुदा दोस्त के साथ जोड़ना, द ऑलमाइटी फ्रेंड, उस परमेश्वर परमात्मा के साथ. This is the basics of meditation. But if you want to learn meditation, you can learn any school of meditation. Every meditation is very good. But since I got this invitation, Dr. Chauhan called up the headquarters of Brahma Kumaris, most respected मृत्युंजय भाई जी. मृत्युंजय भाई जी ने मुझे बहुत प्यार से फ़ोन करके बोला, तो क्योंकि this program has come from the Brahma Kumaris विद्यालय, मैं आपको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के मेडिटेशन बहुत सारे यूट्यूब है. You might be listening to Sister Shivani, who herself is a gold medalist in from Pune University. आप उनको थोड़ा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. और मैं चाहूँगा कि जब ये ऑनलाइन कोरोना का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं डॉक्टर चौहान को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स को लेकर माउंट आबू ज़रूर आइए. क्योंकि माउंट आबू इसलिए आना बहुत ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कुकिंग सिस्टम इस इंस्टॉल्ड है. शायद कुछ लोग आपने देखा होगा, मैंने देखा बहुत सारे IIT के बच्चे भी वहाँ आकर अपने सोलर पर काम करते हैं. एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड जनरेटिंग द 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट. पता है सोलर का इंपॉर्टेंस क्या है? सूरजमुखी जो होता है ना, हमेशा सूर्य की तरफ जाता है. तो हमारा सोलर प्लांट भी ऑटो ट्रैकिंग मैकेनिज्म, जैसे जैसे सूर्य राजस्थान में घूमता रहेगा ना, तो अपने पास जाएगा. बीच में आपने और हमने व्हाट्सएप में पढ़ा था, जब सूरज नहीं होता है ना, ये सूरजमुखी क्या करता है? जब सूरज नहीं होता है तो सूरजमुखी क्या करता है? क्या करता है सूरजमुखी? सूरज नहीं है तो सूरजमुखी क्या करता है? तो सूरजमुखी नीचे नहीं देखता है, वो सूरज जो होता है ना, वो एक दूसरे को देखता है. माधवी जी, यू आर राइट, दे फेस ईच अदर. अपने आप को इतना एम्पावर करो दोस्तों बाय वर्टिकल कनेक्शन कि आप हॉरिजॉन्टल सूरजमुखियों को आप शक्तिशाली बना सकते हो. एंड द चैरिटी बिगिंस एट होम. इट एक्चुअली बिगिंस एट होम. तो क्या करना है? आई विल टेक 2 or 3 minutes and Archana ji, don't worry, I will finish perfectly on time. Okay, I am a twinkle twinkle little star. मल्टीटास्किंग करते हैं ना, ह्यूमन डूइंग के साथ ह्यूमन बीइंग बनिए. द बीइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ. डूइंग तो दुनिया कर रही है, अभी तक करते रहे. किस मानसिक अवस्था के साथ हम कर रहे हैं? तो मैं आपको 3 इनपुट देता. आई द बीइंग इज लवफुल, आई द बीइंग इज पीसफुल, आई द बीइंग इज पावरफुल. एंड आई वाज डूइंग अ सेशन फॉर द एनर्जी कमांडोज. जब मुंबई ताज जल रहा था ना, तो वी सॉ दिस एनर्जी कमांडोज जब नीचे आए थे, तो मैं उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को यही बात कह रहा था, शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम रोल कॉन्शियस टू रियल कॉन्शियसनेस. जब आप अपने कलीग्स के साथ काम करते हो ना, आई द बीइंग इज वेरी पीसफुल.
जब आप घर जाते हो और एनएसजी कमांडो का जो वो ड्रेस जो खूंटी पे लगाते हो ना, डोंट गो देयर इनसाइड योर फैमिली लाइक एन एनएसजी कमांडो। आप जब घर पे जा रहे हो तो यू आर अ फादर, यू आर अ हस्बैंड, यू आर अ सन। डायलॉग चेंज होना चाहिए, लवफुल। तो जितने भी हैं डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर बैठे हैं ना, घर पे हो ना, डीन डायरेक्टर कॉलेज में, ऑनलाइन में, घर में, यू आर अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर। और फिर मैंने एनर्जी कमांडोज को कहा, जब आपको एक एसओएस आ जाता है, इमरजेंसी कॉल आता है, आई द बीइंग इज पावरफुल, आई द बीइंग इज पावरफुल। मेडिटेशन वी एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर द डे। तो अर्चना जी, मेरी जी, आज भोजन बनाओगे ना, तो इस तरीके से बनाना, आई द बीइंग इज लवफुल। अब भोजन बनाना ही है, हस्बैंड मदद नहीं करता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, राइट, डोंट वरी, आई द बीइंग इज लवफुल बीइंग। फिर अपने कलीग्स के साथ बात करना, उनके साथ बात करना, पीसफुल रहे, घर में पीसफुल रहे, राइट। जब काम कर रहे हो, लॉट्स मेनी चैलेंजेस, आई द बीइंग इज पावरफुल। रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, अ ब्यूटीफुल स्लीप, एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट अ जन्नत, वी क्रिएट अ हेवन। उसका मॉडल हमारे घर पर बनना चाहिए। जैसे हम लोग होते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो मॉडल बनाते हैं, और मॉडल को फिर है ना हम लोग एक्सट्रापोलेट करते हैं। घर में मॉडल बनना चाहिए, एक सुंदर वैकुंठ हमारे घर में बनना चाहिए। दैट्स व्हाट इज वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट द आईपीएस फैमिली, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। अब लास्ट, बाय द वे, इंजीनियर्स की भाषा कौन सी है? इंजीनियर्स की भाषा कौन सी है? वाओ, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। पहले क्या क्या लिख रहे थे, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन। द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस। तो एक काम करते हो, मैं अभी अचानक मेडिटेशन कहूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आई डू अ ब्यूटिफुल, मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। सो इट्स 11:25 एज पर माई वॉच। आई एम अ टाइप ए पर्सनैलिटी। एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है बच्चे बताओ। मुझे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिले, लेकिन एक बच्चे का मुझे बड़ा प्यारा सा जवाब मिला। उसने कहा, सर एक अच्छे शिक्षक की निशानी ये है कि क्लास भले आधा घंटा लेट स्टार्ट करेगा चलेगा सर, लेकिन 2 मिनट पहले में छोड़ दीजिए सर। उस दिन से मैं एक अच्छे टीचर बनने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो आई विल ट्राई कि मैं 1-2 मिनट पहले छोड़ दूं आपको। तो मैं काम करता हूँ। बेसिकली आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम मुंबई, बट आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। और 1 साल में केरला में था, वहां से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। बैल्कनी में बैठकर मैं करता था, और मेरे घर के चारों तरफ इतनी सुंदर प्रकृति, और मेरे घर के एकदम नजदीक ना प्यारी सी नदी थी, छल 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 करके पानी आती है, और वो नदी जो है ना सागर के साथ संगम करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई स्टे। एंड मुझे लगता है कि शायद पिछले बहुत सारे जन्मों में मैं आई वुड हैव बीन अ नेचर लवर, ताकि इस जन्म मुझे हमेशा इतनी सुंदर प्रकृति मिली। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू केरला। और जब आप केरला में आओगे ना, तो अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आना, बच्चों की मम्मा को भी लेकर आना, सबको मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा। और जब आप केरला में आओगे ना, तो बहुत प्यार से मैं आपको ईश्वर की याद में बहुत स्नेह प्यार से इडली, डोसा, सांभर, चटनी जरूर खिलाऊंगा, जरूर मैं भोजन खिलाऊंगा। ओके, यस तो लिखो यार, आओगे। पता नहीं है कोरोना कब कंप्लीट होगा, 3rd वेव 4th वेव। थैंक यू सर, थैंक यू, यस यस यस, ब्यूटीफुल। आपको एक काम करता हूँ, ये छोटी सी प्यारी सी नदी है ना, उस नदी का दर्शन कराते हैं। और जब हम प्रकृति के सुंदर सानिध्य पे रहते हैं ना, हमारा इनर नेचर हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। सो लास्ट 2 मिनट्स, राइट, मैं आपको सुंदर से प्रकृति की तरफ लेकर जाता हूँ। राइट, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स, या लेट मी टेक केयर ऑफ इट। ओके ओके, सो आई वांट यू, मैं इसलिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको केरला में आने का मन करेगा। राइट, ओके, यस, आराम से बैठिएगा, रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली, लिसन टू द लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, रिलैक्स, शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए। रिलैक्स, शरीर एकदम हल्का। Keep on watching this beautiful nature. धीरे से श्वास लीजिए, वेरी स्लो, धीरे से एक्सेल करिए।
feel the inhale and the exhale process. I'm alive. मैं जीवित हूँ. Now, जब आप श्वास लेंगे, breathe in the peace. जब exhale करेंगे, just feel my mind is becoming very light. मन एकदम हल्का. अपने मन से बात करिए. Oh my dear friend mine, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो. Faculty of the mind is to think, slow down the thoughts. मन से बात करिए. Oh my dear friend mine, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उसने क्यों किया. Just put a full stop. कोई बात नहीं. It's okay. It's okay. Today I'll increase my reaction time. And I will respond with peace, love, and inner strength. Just feel मन स्वतंत्र. वो कीट से धीरे से स्वतंत्र हो रहे. देह के धर्म, जाति, भाषा, राज्य, मेरा देश, तेरा देश, मेरी जाति, आपकी जाति. Come out of it. At the center of the forehead, I am a twinkle, twinkle little star. अपने आप को उस एनर्जी कॉन्शियसनेस में देखिए. Very peaceful. Point of light, point of energy. Peace is my swadharma. I am a peaceful being. The divinity is there within me. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. It was a great pleasure. Look at the watch. Sharp 11:30. Thank you very much. Thank you, Chauhan sir. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful session. I hope everyone will take advantage of this session. Now I request all the participants to ask their queries if they have any. Before that, Archana ji, just 1 minute, क्योंकि time की अपनी limitation है. You have got your next session at 11:45. So I'll make your job easier. I would request, और बहुत लोग बहुत सारे feedback लिख रहे हैं. शायद मैंने कुछ नई बात तो बताई नहीं होगी, लेकिन जितने लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, ये गुड कहते हैं ना, पता है, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन पैनक्रियास, यू आर डूइंग फॉर योर ओन हार्ट. क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, योर ब्रेन स्टार्ट्स हार्मोन. अप्रिशिएट करो दूसरों को, आप देखेंगे आपकी वेलबींग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. लास्ट थिंग, यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल शेयर विथ यू विथ योर परमिशन. आई शेयर माय ईमेल आईडी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन पुट इट डायरेक्टली टू द ईमेल आईडी, क्योंकि नाउ you have your next session at 11:45. So Chauhan sir, can I share my email ID? Yeah, definitely sir. Archana ji, जरा आप टाइप कर देना. My email ID is evswami@gmail.com. evswami@gmail.com. तो एक स्टूडेंट ने कहा सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EV? तो केरला का फुल फॉर्म है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. तो मैंने कहा द लैंग्वेज ऑफ द माइंड इज इमेजेस. तो मैंने कहा E for elephant, V for victory, SWAMI, I for India @gmail.com. एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा सर आपका इमेज को मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूं क्या, थोड़ा अच्छा वर्जन बताऊं क्या? तो बोला बोलो बोलो. मैंने कहा बोलो, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं. बोला सर एलिफेंट और विक्ट्री इतना मजा नहीं आया सर. मैं कहा तू अपडेट करना. बोला सर E for egoless and V for viceless, then only you can become a real स्वामी सर. सिर्फ नाम पकड़ के मत चलो, असली स्वामी बनो. और उस दिन मैंने महसूस किया यार हमारे बच्चे जो है ना इतने शार्प हैं.
So my email ID is evswami. I think it has been put up on the chat. If you have any questions, you're most welcome to put it on the chat, right? I think we should give them a 10 minutes break so that they are fresh and ready for the next session. If they have any question, Archana ji, they can put it on my mail ID directly. Okay? Thank you very much and have a nice, wonderful, beautiful day today. Always keep smiling. Let's all learn from the next two faculties because they may have jewels of wisdom and insight. Let's all learn from their experience. Thank you, IPS, for arranging this program and inviting me.